بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ محمد مدنی وہ ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ تفسیر سنا پڑھا۔ آج ہم لوگ نئے سورت شروع کریں گے جس کا نام ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح مدینہ، یہ مدینہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مدینہ میں نازل ہوا۔ دو جگہ کعبہ مکہ اور مدینہ۔ اب جہاں جہاں جو سورہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے، تو وہ جگہ کا نام کوئی مکی سورت، کوئی مدینے کی سورت کہیں ہے۔ یہ سورت بھی جو الفتح آج ہم لوگ شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ مدنی صورت ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ پہلے کے حالات کو جاننا چاہیے۔ پہلے کے حالات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی جو مسلمان ہوئے تھے وہ سب ہجرت کر کے جا چکے مدینہ منورہ۔ مکہ میں کمزور لوگ یا جو نہیں جا سکے وہی رہ گئے مسلمان، اور کئی لڑائیاں مدینہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، اور مدینہ میں بھی بدر کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد خندق کی لڑائی ہے، سورہ احزاب ہے، وہ تین لڑائیوں کے بعد بھی جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، یہ سب مدینہ میں ہوا خندق۔ اس کے بعد مکے سے جو لوگ مدینہ آ گئے ان کا جانا آنا بند ہو گیا۔ مکے میں ہے کعبہ جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تب مکے میں حج اور عمرہ دونوں دنوں کے لیے بند، وہاں سے آنا جانا بند، یہ سب کچھ تھا۔ چھٹی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ تو پیغمبر کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ وہ خواب کیا تھا کہ ہم مکہ گئے ہیں اور وہاں ہم کو چابی ملی ہے اور ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ یہ انہوں نے خواب میں دیکھا اللہ کا۔ تو یہ خواب بیان کیا انہوں نے لوگوں سے کہ ایسا ایسا خواب، جو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ چلو مکہ جانے کا موقع اس بہانے ہی مل جائے گا۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا، اور اعلان میں جو مکہ سے وہاں گئے تھے لوگ وہ سب مہاجر کہلائے، اور وہاں کے جو لوگ اسلام لے آئے وہ سب انصار کہلائے، اور جو دیہات میں قبیلہ لوگ سب رہ گیا اعرابی دیہاتی، وہ لوگ بھی بہت سا لوگ ایمان لایا۔ تو اعلان ہوا کہ بھائی مکہ چلنا ہے، کاہے کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے چلنا ہے۔ اور سب تو اس میں 70 اونٹ دیا گیا، اور اس کے بعد 1400 آدمی تیار ہوئے۔ یہ 1400 آدمی مکہ سے چلے اور مدینہ منورہ سے چلے، اور تھوڑے راستے پر آگے جا کے ذوالحلیفہ ہے، ذوالحلیفہ میں جا کے غسل کر کے اور عمرہ کا احرام باندھ دیا ان لوگوں نے، اور کوئی ہتھیار زیادہ نہیں لیا، صرف تلوار لیا، اور وہ بھی میان میں رکھا۔ وہ بھی کہاں ہے؟ تلوار میان میں، مانے لڑائی کے ارادے سے نہیں چلے، وہ چلے کہ ہم وہاں اللہ کی عبادت عمرہ کریں گے۔ اور ذی قعدہ کے مہینے میں ان لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ یہ 1400 آدمی کا نفری سب پہنچا تو مکہ کے قریب میں غنیم ایک جگہ ہے، عسفان ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے، اور دونوں طرف سے خبر ہونے لگی
इन्होंने भेजा आदमी कि भाई पता चले कि वहाँ मक्का के लोग क्या सोच रहे हैं, कुरैश लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग के आने की खबर है कि नहीं या क्या बात है। तो वहाँ से आदमी खबर दिया कि वो लोग तो जंग के लिए तैयार है कि नहीं, घुसने ही नहीं देंगे मक्का। तो ये लोग उसके बावजूद भी चलते रहे। उन लोगों ने हाजी सैफुल्लाह को भेज दिया और भी फौज के साथ भेज दिया कि मक्का में इन लोगों को इंटर करने नहीं देते तो बहुत बदनामी हो जाएगी कि साहब कुरैश के लोग कमजोर हो गए और ये लोग जो है जो वहाँ ताबीज हो गए। तो इसीलिए किसी हाल में भी इन लोगों को मक्का में उम्रा के लिए आने नहीं। इधर इन्होंने देखा कि लड़ाई ठीक नहीं है, तो एक आदमी से कहा कि भाई कोई रास्ता दूसरा हो वो बदल दो। तो दूसरे रास्ते से एक आदमी उनको इन लोगों को ले आया और जगह थी हुदैबिया। हुदैबिया जो हाजी लोग जाते हैं वो हुदैबिया की जगह पर वो हुदूद हरम है, हरम से थोड़ी दूर पर है, नजदीक एक एरिया चारों तरफ से घेरा है जिसको हुदूद हरम बोलते हैं। मक्का हुदूद हरम में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, सिर्फ मुसलमान ही जा सकता है और बैंड है और बाकी और सब जगह पर जा सकता है, लेकिन मक्का के हुदूद में इंट्रेंस नहीं है। और हुदूद हरम से पहले तो ये हुदैबिया है। हुदैबिया एक कुएं का नाम है, उसी जगह ये लोग, क्योंकि पानी चाहिए, पानी नहीं होगा तो कहाँ रुके काफिला। तो ये लोग सब आके हुदैबिया की जगह पर जो है रुके, वहाँ कुएं का पानी घट गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कई रवायत है। एक रवायत है कि उन्होंने तीर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस तीर को उस कुएं में गाड़ दो, और गाड़ दिया उस तीर को, तो उससे कुआं पानी से भर गया। दूसरा है कि पानी मंगवाया, उन्होंने वजू किया, कुल्ली फेंका और उसको कहा उसमें गिरा दिया, उससे भी पानी पूरा चलाया। सारे काफिले वालों के लिए 1400 आदमी है, खाना पीना पानी की कितनी जरूरत है, वो सब वहाँ पर। अब वही हुदैबिया, उसी हुदैबिया में बात शुरू हो गई, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोग आए कि भाई इन्होंने भेजा कि हम लोग जो आए हैं वो लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, जंग के लिए नहीं आए हैं। हम लोग का मकसद है कि हम उम्रा कर ले और हम चले जाएं। हम अपने साथ जो है कुर्बानी का जानवर भी लाए हैं। उसके गले में एक पट्टा लगा दिया गया ताकि पता चले कि ये जानवर जो है कुर्बानी के लिए। उसको कलाबा भी बोलते हैं और पट्टा भी बोलते हैं कि भाई, और हमारे हथियार भी देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ तलवार है और भी म्यान है, और ऐसे कोई तलवार भी नहीं। हम लोग उस काम के लिए नहीं आए। रसूलुल्लाह वहाँ नमाज पढ़ाते रहे सब लोगों को और वफद भेजते रहे, और वहाँ से वो लोग आते रहे, लेकिन हर वक्त यही हुआ कि आप जा नहीं सकते हैं, आप चले जाइए यहाँ से और दूसरे साल आइएगा। इस साल जो है आप उम्रा नहीं कर सकते। अब यहाँ यही बहस होती रही। आखिर में हुआ कि भाई कोई अपने तरफ से अच्छा आदमी जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पहुँचाए वहाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु से कहा कि आप चले जाइए और जाके वहाँ कहिए कि हम लोग लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ उम्रा के लिए आए हैं, और कोई भी आदमी उम्रा के लिए या हज के लिए किसी को रोक नहीं सकता, और हम लोग का रोकना जो है तो बहुत जुल्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक कि हम लोग उम्रा करेंगे। तो आखिर में हुआ कि भाई हज़रत उस्मान गनी को भेजा जाए, और उमर फारूक को ले गए। उन्होंने कहा कि हमसे तो सादे सब दुश्मन है, हमारा कोई रिश्तेदार भी वहाँ नहीं है, हम जाएंगे तो हमको तो कत्ल करने का क्या। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खलीफा भी बने हैं रसूल के, और उनके दामाद भी थे।
उन्हीं को भेजा गया। उनके रिश्तेदार लोग बड़े अमीर कबीर थे, उनके जान पहचान के लोग सब लोग थे। वहां जाकर वहां सब लोगों ने उनकी बड़ी खातिरदारी की, और जितने रोसा थे, बड़े लोग थे, उनसे मिले कि हम लोग की नीयत जो है वो जंग की नहीं है, हम सिर्फ उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि किसी कीमत पर उम्रा तो करने नहीं दिया जाएगा। और इस बीच में बहुत से कबायली को भेजते थे कि वहां जाके उन लोगों से जंग करे, ताकि जो है सो ये लोग वहां से लौट जाए। लेकिन वो लोग कामयाब नहीं होते थे। उन लोगों को अरेस्ट करके सब गिरफ्तार करके, मुसलमान लोग थे उधर सब थे, सब लोग एकदम थे। वहां जाके उनके पास, रसूलुल्लाह के पास आते थे कि ये सब है, सबको छोड़ते जाते थे। जितने लोग अरेस्ट होकर आते थे, लड़ाई करने के लिए पकड़ा जाते थे। वो एक आदमी मर भी गए सहाबा में से। इसी बीच में हल्ला हो गया, अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहां कत्ल हो गया, तो उनको लोगों ने मार दिया। ये अफवाह था। हालांकि वहां लोगों ने रोक लिया कि बहुत दिन के बाद है, और उनसे कहा कि हजरत उस्मान गनी कि भाई तुम तवाफ कर लो, लेकिन हम रसूलुल्लाह को नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जब वो नहीं करेंगे तो हम उनसे पहले तवाफ कर ले, ये हमारे लिए मुनासिब है, हमारी पैदल दोबारा नहीं करते। ऐसे थे। अब तवाफ करने का कितना सवाब है वो मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से पहले हम सब नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह के साथ करेंगे। नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद यहाँ से एक वफद इन लोगों ने भेजा, अरवा बिन सख्फी है और भी हैं लोग, सुहैल बिन उमर है, वो लोग भेजा कि जाके उनसे आखिर बात करो, सुलह की बात आने। यहाँ आए वो लोग, तो उसकी जो वफद है तो ये हुदैबिया के ही नाम से सुलह हो जाएगा। एक सुलहनामा लिखा गया, आपस में लोगों को हुआ कि ये आप इस बार लौट जाइए। तो रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है हम लौट जाएंगे, इसको मान लिया। कहा दूसरा, हमारे यहाँ से कोई आदमी भाग के मदीना मनव्वरा चला जाएगा तो वहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिएगा, वो हमारा मक्का है। लेकिन आपका कोई आदमी अगर यहाँ आ जाएगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। शर्त में ये भी लिखा गया। अब इतना भीड़ के मुसलमान का है, और आप इस साल चले जाइए, दूसरे साल आइएगा, तो ये उम्रा हुआ नहीं तो इसकी कज़ा कर लीजिएगा उम्रा, तो एक साल के बाद आइएगा। हम लोग मक्का 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, आप कोई हथियार लेके नहीं आइएगा, आप 3 दिन के बाद आप मक्का खाली कर दीजिएगा, तब हम लोग आएंगे। यही इसमें तय हुआ। और भी है तो वो हम आगे बताएंगे। सुलह हुदैबिया, तो इसमें हुआ कि साहब ये सब लोगों को कहा गया था कि उम्रा करने चलेंगे। अब वो लोग कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्रा करने चलेंगे, और यहाँ से लौटने की बारी हो रही है। सब लोग जो है जो नौजवान ही सब थे, सब फौज थी, वो सब नाराज हो गए। और उसमें रसूलुल्लाह का नाम लिखने की बारी आई तो कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह मान लेंगे तो झगड़े खत्म हो जाएगा। रहमान रहीम था, ये सब हम सब नहीं मानेंगे। आप कहिए कि आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे, उसमें सुलह हो रही है, सुलहनामा लिखा जा रहा है। तब भी उन्होंने कहा मानते। अब रसूलुल्लाह लिखा गया था तो कहा उसको भी काट दो। अब काटने के लिए हजरत अली तैयार नहीं थी, तो वही लिख रहे थे कि हम रसूलुल्लाह का नाम नहीं करें। और रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से कहा कि बताओ हमको कहाँ पर है, तो बताया, काट दिया और कहा लिखो जो ये कहता हो। अब उन लोगों को लगा, मुसलमानों को, कि इतना गिर के सुलह कर रहे हैं। इस सुलह का नाम है सुलह हुदैबिया, क्योंकि वहां पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुलह हुदैबिया। हुदैबिया जगह पर हम लोग हज करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर रोकता है, पानी वानी देता है, जगह के बारे में बताता है। वहाँ से 22 किलोमीटर मक्का है सिर्फ, और वहाँ से आदमी काफ़ी जांच होती है कि कोई गैर मुस्लिम वहाँ नहीं जाने पाए। उस हदूद है।
तो 22 किलोमीटर के बाद में मक्का वो जो है शुरू हो जाता है। तो अब ये हुदैबिया में हुआ कि जब नहीं होना है तब रसूलुल्लाह ने सब लोगों को कहा कि कुर्बानी कर लो सब लोग, क्योंकि कुर्बानी का आया था, असर मुँह डाल लो, अच्छा चले चलो वापस। किसी ने बात नहीं मानी, बहुत गमज़दा हो गए, बहुत गमगीन हो गए। तब अपने गुजरे में गए, वहाँ उस वक्त में उनके अहलिया उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा साथ थी, उनसे जाके कहा। इसलिए औरत की बड़ी कदर कीमत होती है कि रसूलुल्लाह जब परेशान हुए और गमगीन हुए, कहाँ गए? अपनी अहलिया के पास गए और वहाँ जाके कहा कि ऐसी ऐसी बात है और आप उसको कोई मानने को तैयार नहीं है, बहुत रंजीदा थे। तब उन्होंने कहा, समझाया, या रसूलुल्लाह आप जो है खुद से जाके अपना सर मुड़वा लीजिए और कुर्बानी कर लीजिए और उन लोगों को कुछ मत कहिए। वो लोग जो है उम्रा के बारे में सोचते थे हम लोग उम्रा करेंगे और यहाँ उम्रा हुआ नहीं। वो लोग का गुस्सा है चढ़ा और गिर के सुलह किया है, और गिर के सुलह हुआ कि जिस वक्त सुलहनामा लिखा गया और दस्तखत हो रहा था, उसी वक्त एक मुसलमान वहां से मक्का से जो कैद में था वो भाग के वहां पहुंच गया कि साहब हम चले जाएंगे मुसलमानों के साथ। और वो उसका बेटा था सुहैल का ही बेटा था। उसके बाद में उसने कहा कि देखिए सुलहनामा हो गया है, ये आ गया है, इसको वापस कीजिए। रसूलुल्लाह साहब वो चिल्लाता रहा, मुसलमानों सब कहते थे कि बताइए मुसलमानों के साथ नहीं जाएगा। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ सब्र करो, अल्लाह कोई न कोई इंतजाम कर देगा। हमारे बहुत से लोग जो पास है, जो अहद किया उसको पूरा करना चाहिए, इस्लाम यही सिखाता है। उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो ये देख करके फौज में बहुत गम गुस्सा था। तो वही हुआ कि उम्मे सलमा के मशवरे पर है कि इस मुसीबत में हमें बीवी काम आती है और औरतों का मुकाम बहुत ऊंचा हुआ कि ये ऐसे मुसीबत के वक्त में वो मशवरा है। तो उम्मे सलमा के बाद इन्होंने जब कर दिया तो लोगों ने देखा कि रसूलुल्लाह ने सर मुड़ा दिया है, कुर्बानी कर दिया है, तब सब लोगों ने फिर सर मुड़ाया, कुर्बानी कर दिया। लेकिन इसका हजरत उमर फारूक गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो बहुत नाराज है, इतना नाराज कि वो रसूलुल्लाह के पास गए तो कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नबी नहीं है अल्लाह के? कहते हैं क्यों नहीं? कहा कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं। कहा क्यों नहीं? तो कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने नहीं कहा था कि उम्रा करने चलेंगे? कहा कि हाँ कहा था, तो फिर वापस क्यों जा रहे हैं? कहा कि हम ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे। कहा कि हाँ ये तो नहीं कहा था। और कहा कि उमर तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं, ये जो सुलह है वो हमारी फतह है, ये जो है सुलह नहीं है बल्कि फतह है। उसी पर उन्होंने कहा कि ये फतह है, हम लोग गिर करके कि हमारा आदमी जाएगा तो वो रख लेगा और उसका आदमी आएगा तो हम वापस कर देंगे। जो जो कह रहा है हम सब उल्टा। और मुसलमान जो है सो माने हमको ये भी नहीं करने देता है, उम्रा भी करने दे रहा है। तब उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। अल्लाह की मसलहत जो है ये तुमको बाद में पता चलेगा। हुआ आखिर में कि सब लोगों ने कुर्बानी किया, सब लोग वहाँ से बहुत सारे वापस चले आ गए। तब वो गमी में एक जगह है जहाँ रुके थे, मक्का और मदीना के बीच में है, 300 साढ़े 300 मक्का से मदीना जाने में 300 किलोमीटर या 250 किलोमीटर ये लगता है। तो ये जगह है, तो मक्का से मदीना के बीच में जाके उसी में अल्लाह ताला की तरफ से ये सूरत नाजिल हुई। ये सूरत नाजिल हुई, उस सूरत का नाम है सूरतुल फतह, फतह मुबीन। ये और
रसूल अल्लाह ने सबको बुलाया, भीड़ लग गई, और सब लोगों को ये सूरज सुना जाए कि अल्लाह ताला ने फतह मुबीन किया। इस सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन कहा गया। तो ये वाक़या किया। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदीयक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा वल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअ्मिनीन लियज़दादु ईमानम मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कानल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा यहाँ अल्लाह ताला की ये जो कुरान की आयतें उतर रही हैं, नाजिल हुई, इसमें कहा गया कि हमने आपको खुली फतह दी। ये सुलह हुदैबिया को बताया कि खुली फतह दी। अब मुसलमान लोग तबाह हो गया। माने हजरत उमर आए कि ये खुली फतह है, तो हाँ खुली फतह है। क्या खुली फतह है? इसमें अल्लाह ताला ने लिखा है लियग़फ़िर लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपने जो ज़ंब किया, बहुत से लोगों ने गुनाह लिख दिया कि आपने जो अगले पिछले गुनाह जो है वो आपके माफ़ किए हैं। तो ये दो तरह के ख्यालात मुफ़स्सिरीन ने दिए हैं, अपनी राय दी है। एक ने कहा है कि गुनाह तो नहीं हो सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह हो चाहे कोई भी पैगंबर हो, अल्लाह ताला उसको महफूज कर देता है गुनाहों से। इसीलिए रसूलुल्लाह तो गुनाह अगला पिछला किया, पहले भी मासूम थे, अब भी मासूम है और मासूम ही रहेंगे। माने उनसे गुनाह का सरजद होना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हिफाजत फरमाया हो। इसलिए ये तर्जुमा करना गुनाह का सही नहीं है। एक तबका ये कहता है, दूसरे तबका ने कहा कि इस गुनाह का मतलब ज़ंब माने गुनाह, इसको उसने कहा कि ये गुनाह वैसा नहीं है जैसा आम लोग करता है। ये गुनाह है कि तर्क उला जो है उसको छोड़ दिया। ये गुनाह है सगीरा टाइप का मामूली चीज़ कि जो होना चाहिए उसके मुताबिक नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, तो यही गुनाह में इसको माना गया, गुनाह सगीरा में। फिर भी मुसलमानों के मुफस्सिरीन का एक बड़ा तबका, कुर्तुबी है, बहुत से लोग हैं, उसने कहा कि नहीं, कोई गुनाह उनसे सरजद हो ही नहीं सकता, कसूर कोई हो ही नहीं सकता उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए अगले पिछले गुनाह नहीं, बल्कि ज़म का माने इल्ज़ाम। कुरान ने ज़म का ज़म्बुन ये कुरान में अलग मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप जाइए फ़िरौन को और अल्लाह का पैगाम दीजिए कि अल्लाह एक है, ये है, तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, तो हम तो ज़म्बुन, उन्होंने बताया कि हम पर तो इल्ज़ाम है कि हमने हमारे जो है तो हमारे लोगों में से एक आदमी को मारा था, उसने मदद के लिए पुकारा, तो हमने गुस्सा से एक घुसा मारा, मुक्का मारा और वो आदमी मर गया। तो
تو وہ ہم پر الزام ہے، یہ ہم کو تو قتل کر دے گا وہ. تو وہاں ذنبون کا معنی الزام لیا ہے. تو یہاں مفسرین کی ایک رائے یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی نے پر جو الزام آیا، چاہے پہلے آئے ہو ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، تو اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہجرت سے پہلے لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، لوگ پاگل کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، یہ سب الزام لگاتے تھے. اور ان پر ہجرت کے بعد الزام لگنے لگا کہ یہ بھائی بھائی میں ٹکراؤ پیدا کر دیتا ہے، اپنے رشتے داروں کو اس میں قوم میں جو ہے خلفشار پیدا کر دیا، لڑائی کر دیا، بہت تباہ کر دیا. یہ سب الزام جو ہے ان پر لگنے لگا تھا. تو کہا کہ یہ جو الزام ہے ضم، یہاں ضم کا معنی الزام سے لیا کہ اللہ آپ کے لیے بخشے اور جو پہلے اور آپ پر ذنب گزرے ہیں، معنی الزام لیا ہے، یا جو ہجرت سے پہلے ہوا ہو یا ہجرت کے بعد کا، وہ سب جو ہے معافی ہو رہی ہے کہ آپ پر اپنی، اور اللہ آپ پر نعمت مکمل کر دیا اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور اللہ آپ کو اور طاقت دے، نصرت دے، فتح دے، ایک نصرت جو بڑا زبردست ہو. اب ایک مطلب یہ دیا گیا، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا. گناہ کا مطلب کر کے اولا سے وہ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ جو زیادہ مفسرین ہیں، قرطبی ہوں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، سب نے یہ لیا کہ ہجرت سے پہلے جو الزام لگا اور ہجرت کے بعد جو الزام لگے، ان الزامات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں. تو یہ ہے. اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی وجہ سے کیا کیا فتح کر دیا. اس کو کہا کہ زبردست فتح. تو مسلمان اس میں لکھا گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوئی. وہ جو معاہدہ تھا اس معاہدے میں تھا کہ 10 سال تک ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے. اب امن چین ہو گیا، یہ بڑی بات ہو گئی. دوسرا ہو گیا کہ کوئی آدمی جو اپنا ہے اپنا پھیلائے گا، آپ اپنا دین پھیلا سکتے ہیں. اب جو قبائلی لوگ سب تھے وہاں جانا یا اور سب میں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو مل گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ بھیجوانا، دعوت، دین کی دعوت دینا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ فوج در فوج بہت سے لوگ اسلام لانا شروع کر دیے، اور اتنا زیادہ آ گئے اسلام میں آدمی کی جس کا حد مسلمانوں کی طاقت بڑھ. تو یہ لوگ پھر دوسرے سال چلے گئے، اور 8ویں سال میں جو ہے مکہ کی فتح کے لیے تیار ہو گئے. تو اس وقت جو گئے تھے تو 1400 آدمی، اور جب 8 تاریخ کو مکہ میں حج کرنے کے لیے جب چلنا شروع کیا انہوں نے، تو 10,000 کا مجمع ہو گیا. پہلے 1400 تھا، اب 10,000 ہوا. اتنا اسلام بڑھ گیا، اور بہت سا جو ہے خیبر ہے، فدق ہے، کئی علاقے فتح ہوئے. اس سے مالی غنیمت بڑھی اور اسلام کا بول بالا بہت بڑھ گیا. تو اب یہ جو ہے اسی کو کہا کہ جب اسلام کا دین اسلام بڑھ جائے، کافی زیادہ بڑھ جائے، تو اس سے بڑی فتح کیا ہوتی. اور وہاں جاتے عمرہ کر کے چلے آتے تو اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یہاں تو 10 سال تک جنگ نہیں ہوئی، امن چین رہ گیا. اور وہاں تھا کہ کب جنگ ہو جائے، کب کوئی چین سے نہیں رہتا تھا. اسی لیے اس کو فتح مبین، سب سے بڑی فتح، کھلی فتح کی کہی گئی. اسی صلح حدیبیہ اسی کے بارے میں آیا ہے. اب اس میں ہے هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. کہا کہ مومنوں کے دل کو سکونت ہو گئی. گھبراہٹ رہتی تھی، پریشانی رہتی تھی، یہ کہاں کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب بند ہو گیا. چونکہ یہ معاہدہ میں ہے کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کرے گا، تو آرام سے جو جہاں جانا چاہے اپنا کاروبار کرے گا. اور پھر یہ اور کہا کہ مسلمانوں کے ایمان کو اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایمان کو بڑھا دیا، اور دین کی دولت اور لوگوں کو ملنے لگی، پھیلتا گیا. اور اللہ بھی بڑا حکمت ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو
जितना भी लश्कर है वो सब लश्कर तो अल्लाह ही का है, चाहे आसमान में हो या जमीन में हो। अल्लाह चाहता तो अपने लश्कर को भेज करके मक्का फतह कर लेता, लेकिन नहीं। वहां ये है कि मुसलमान जो ईमान वाले हैं वो अपनी ताकत से फतह करें, कि माने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, लड़े और उसमें अमन चैन पैगाम ये पैदा करें। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला के पास तो सब कुछ भी है, लेकिन अब वही हिकमत जानता है क्यों ऐसा किया। अब दो तरह के लोग हैं। एक तरह का लोग है जो अच्छा काम किया, अल्लाह के रास्ते पर चला, रसूल की बात को माना, और जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि करो वो किया, और जिस चीज से मना कर दिया उससे रुक गए। ऐसे लोगों के बारे में हुआ कि ये जो लियुदखिलल मोमिनीन वल मोमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व युकफ्फिरु अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। कहा कि जो मोमिन और मोमिनात है, माने जो मुसलमान ईमान वाला है और जो मुसलमान औरतें ईमान वाली हैं, इन लोगों को अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत बनाया है, जिस जन्नत में हमेशा रहेंगे, और उनके जितने गुनाह हैं उसको दूर कर दिया है। और यही बहुत बड़ी काम इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी को जन्नत मिल जाए। ये दुनिया तो हमेशा रहने वाली है नहीं, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब करने में जो अच्छा काम किया वो जन्नत जाएगा। तो जिसको जन्नत मिल गई तो सबसे बड़ी कामयाबी तो वही है। और जो जहन्नम में भेजा गया वो बड़ी कामयाबी है, वो कामयाबी नहीं है, खराबी है। तो जो मोमिन मर्द हैं, औरत हैं, जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और अपनी जिंदगी को हर तरह की बुराइयों से बचाते रहते हैं, वो लोग अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत बनाए हुआ है, जो जन्नत में हमेशा रहेंगे, जिसमें नहरें बहती जाएंगी और उनके गुनाह को भी बख्श देगा। और दूसरी तरफ दो तरह के लोग हैं। ये तो मोमिन के बारे में है, मुसलमान के बारे में खबर हुई। ये काफिर लोग जो है और मुनाफिक लोग जो है और मुशरिक, जो अल्लाह को भी मानता है और दूसरे को भी मानता है, तब हो जाएगा, राम राम भी करता है, अल्लाह भी करता है, तब तो खत्म हो गया। और उसमें है कि अल्लाह को मानते हो तो सिर्फ अल्लाह ही को मानना, रसूल को मानते हैं सिर्फ रसूल के हुक्म पर चल रहा है, दूसरी तरफ नहीं। मांगना है तो अल्लाह से मांगना, दूसरी तरफ सर झुकाना नहीं। यहां तो इस सूरे में साफ साफ कहा गया कि मोमिन जो मर्द है, मोमिन जो औरत है, वो सब कहाँ जाएगी? तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत बनाया है, नहरें जारी है, उसी में हमेशा रहेंगी। उनके गुनाहों को अल्लाह ताला और कुछ हुआ होगा तो वो माफ करते हैं। दूसरी तरफ मुनाफिक वो है जो रसूलुल्लाह के साथ नमाज भी पढ़ते थे और उधर दुश्मन से भी साजबाज करते थे, झूठ भी बोलते थे। तो सामने आए तो कुछ तारीफ किया और पीछे गए तो शिकायत करने। ऐसे मुनाफिक को उन्होंने कहा, और दुश्मन को जाके बात बता देते थे, ये हो रहा है। दुश्मन का खाना पीना भी करते थे, बहुत था। तो ऐसे जो मुनाफिकीन और मुनाफिकात, तो जो मर्द में से है वो मुनाफिक और जो औरत में से है मुनाफिकात, वो ऐसे जो दोनों है, औरत मर्द में से दोनों मुनाफिक जो है, मुसलमान नहीं है, नाम पर का मुसलमान है, वो जहन्नम में जाने वाला है। और मुशरिक जो अल्लाह को भी मानता है और दूसरे पर भी लौ लगाए हुआ है और दूसरे के मुताबिक भी चल रहा है, तो वो हो गया मुशरिक। और जो सिर्फ अल्लाह को मानता है तो वो हो गया मोमिन। तो मोमिन के रास्ते पर अल्लाह रसूल को मानने वाला मोमिन, और जो अल्लाह को भी माने और दूसरे को भी माने तो उसको कहते हैं मुशरिक। और जो अल्लाह के साथ रहे, बात भी रहे, और उसके बाद में दुश्मन अल्लाह की, मुसलमानों के दुश्मन के साथ दोस्ती करे और उसकी खबर पहुंचाए, तो ये हो गया मुनाफिक। झूठा बोले, बेईमानी करे, धोखा दे, तो ये मुनाफिक है। कहा ये सब कहाँ जाएंगे? तो ये सब जो है, इनको बुराई की गर्दिश घेरे हुए है। ये सभी लोग अल्लाह का गज़ब है इस पर, ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं, और जहन्नम सबसे बुरी जगह है। तो दो रास्ता बताया, या तो मुमीन होके आप जन्नत में जाइए, या आप मुशरिक होके जहन्नम में जाइए।
मुनाफिक हो के जहन्नम में जाएंगे। ये रास्ता कुरान ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे सब जो लोग थे उनका ये हश्र होगा, तो क़यामत तक के लिए ये कानून बन गया। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये कह रहा है कि जितना भी लश्कर है जमीन में हो आसमान में हो, सब तो अल्लाह का है, अल्लाह ही का लश्कर है, और उसी पर अल्लाह ही गालिब है, वही हिकमत वाला है, वही जानता है। वो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमने आपको शाहिद माने गवाही देने वाला, शाहिद गवाही देने वाला, वो मुबश्शिर व नज़ीरा, और अच्छा काम करने वाले को खुशखबरी देने वाला कि तुम जन्नत में जाएगा, और जो बुरा काम करते हैं तो उनको अजाब की खुशखबरी सुनाना, अजाब डराना कि अल्लाह तुमको जहन्नम में भेजेगा, ये अजाब करेगा। तो ये दो चीज हुआ, एक तो हुआ शाहिद गवाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी दो तरह के ख्यालात हैं कि रसूलुल्लाह अपने ज़माने में जितने उनकी उम्मत थे उनकी गवाही देंगे, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, जितने भी अभी तक उनकी उम्मत में लोग हैं सबके आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं कि अच्छा काम कर रहा है कि बुरा कर रहा है, क्या है नहीं है। तो एक मुफस्सिरीन का ये ख्याल भी है कि सबकी गवाही देंगे वो, और दूसरे का है कि उनके वक्त में जो लोग थे मुझे वल्लाह आलम बिस्वाब, अल्लाह बेहतर जानता है कौन। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ये ताकि तुम लोग, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुआ, बात हुई कि ये इनको कराने वाला माने अजाब से डराने वाला, और जन्नत की खुशखबरी, अच्छा काम करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला, और गवाही देने वाला, गवाह बना के, शाहिद भी बना के भेजा। और अब यहाँ आगे है कि अल्लाह, ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। मुसलमानों को क्या चाहिए या किसी को भी, तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, और इसके लाने के बाद है इसमें लिखा है कि उसकी मदद करो, उसकी ताज़ीम करो, और अल्लाह की तस्बीह बयान करो। तो ये दो बात तो लिखा है, तो अज़्ज़िरूहु माने मदद करना, वो वक़्क़िरूहु और उसकी ताज़ीम करना, तो रसूलुल्लाह की मदद करना, उसकी ताज़ीम करना। और आखिरी जुमला लिखा हुआ तसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करना। तो तस्बीह अल्लाह की बयान की, रसूलुल्लाह की नहीं हो। बहुत मुफस्सिरीन ने माना है कि तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ये सब अल्लाह के लिए है। और कुछ लोगों ने माना है कि नहीं, इसमें मदद और तुवक़्क़िरूहु ये करना, उनकी ताज़ीम करना रसूलुल्लाह के लिए है, और बाकी तुसब्बिहूहु सिर्फ अल्लाह की होगी, तस्बीह अल्लाह का बयान होगा। तो ये अलग अलग राय मुफस्सिरीन की है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। अब सुलह हुदैबिया में बैत हो रहा, बैत कहते हैं इरादा को, ऐसा इरादा जो किसी खास काम के लिए, किसी मकसद के लिए किया जाए, अहद करना कि हम ये काम करें, इसको बोलते हैं बैत। और बैत में है कि हाथ पर दूसरे आदमी से लिया जाता है, कि उस आदमी का हाथ पकड़ के अहद कराया जाता है कि ये काम करोगे, वो काम करो। तो यहाँ जो बैत हुई रसूलुल्लाह से हुदैबिया के, उसको बैत रिजवान कहा जाता है। 1400 आदमी ने बैत लिया। जब खबर ये फैल गई थी
کہ حضرت عثمان غنی قتل کر دیے گئے، اس افواہ پر یہ ہوا کہ نہیں، تب ہم لوگ جو ہے مکہ پہنچیں گے اور وہاں چاہے گردن کٹے چاہے جو ہو، تو سب لوگ اس پر کیجئے کہ ہم بھاگیں گے نہیں، ہم ڈٹ کے دشمنوں سے لڑیں گے، ہماری جان رہے یا جائے ہم وہاں جا کے عمرہ کریں گے۔ اس پر جو ہے سو آپ بیعت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے عثمان غنی کا ہاتھ کیجیے، تو بیعت لیتا ایک ہاتھ جو بیعت لینے والا ہے اس کا ہوا، ایک بیعت جو لے رہا ہے اس کا ہوا۔ تو ایک رسول اللہ کا ایک دوسرا آدمی آ کے جس نے ہاتھ دیا وہ بیعت عہد کیا وہ ہے۔ تو اس عہد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے بیعت لے رہے ہیں اس کی وہ بیعت دراصل اللہ سے اللہ بیعت لے رہا ہے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس میں بھی ید اللہ اس میں لکھا ہوا ہے، فوق من اوپر ایدہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ اب ہے کہ اب اللہ تو کسی نے دیکھا نہیں اور ہاتھ ان کو ہے کہ نہیں، یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مانے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اطیع الرسول فقط اطاع اللہ، مانے رسول کی جو اطاعت ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، انہی کے حکم سے ہو رہا ہے، وہی نازل ہوتا ہے انہی سے۔ تو چونکہ اللہ ہی کے لیے وہ مانے دین کے بڑھانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کر رہے ہیں، ہاتھ کر رہے ہیں، تو اس ہاتھ پر جو کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ بیعت لے رہا تھا، تو رسول اللہ کام کر رہے ہیں، واسطہ ہوا کہ رسول اللہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ بیعت بواسطے رسول اللہ کے لیے ہو گیا، یہ ہے مطلب۔ اور اس میں سادہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس پر رکھا ہوا، تو اس کا مطلب جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ کتنا لمبا ہے کتنا چھوٹا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس بات سے منع کیا گیا۔ اسی لیے دونوں رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اپنا اپنا نظریہ ہے، اللہ عالم بالصواب۔ قرآن نے جو لکھا ہے وہ ہم نے بتا دیا، اور جو مفسرین نے لکھا ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا، بیعت دیا تھا، اس بیعت کو توڑا تو وہ کتنا ہوگا، وہ اس کی ذات پر پڑے گا، اور جس نے عہد کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب اجر عظیم دے گا۔ یہ تک ہے، پہلی رکوع ختم ہو گئی، اب درود شریف پڑھو، دعا کرو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے اور قبول کر لے۔ اے اللہ، اس کا ثواب جو جتنا بھی ثواب اس کا ہو سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے ازواج، ان کے احباب، جتنے بھی صحابہ، ائمہ، صلحاء، بزرگان دین، جتنے بھی جتنے بھی مومن مومنات اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، اور پورے اس سے یہاں کے جتنے بھی مومنات ہیں اس علاقے میں ہو، پورے پٹنہ کے سب جگہ کے اللہ وہ بخش دے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا کر کہ قرآن کی تلاوت سب لوگ کریں، اور اس کو عربی میں ہے تو اردو میں مانے، ہندی میں مانے، سب میں نکل گیا ہے انگریزی میں، تو اس کو مطلب سے سمجھ کے پڑھیں کہ قرآن میں
کیا پیغام دیا گیا ہے اور کس کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ترجمہ کے ساتھ اس کو کم سے کم پڑھیں اور جو سمجھ میں نہیں آئے تو عالم سے پوچھ لیں. یہ کام کریں. یہ احکام ہے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، مومن کے بارے میں، ہر چیز کا بصیرتوں کا خزانہ ہے قرآن. بصیرتوں کا ہر طرح کے علم کا خزانہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام روزی سے سب کو بچا، کیونکہ حرام روزی سے کوئی دعا، جو کپڑا پہنے گا حرام روزی کا، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، نماز قبول ہوگی. تو اللہ حلال روزی عطا کر اور توفیق دے کہ حلال روزی کھائے، حرام سے بچا لے. آدمی تو کوشش کرتا ہے بچنے کا، لیکن جب تک کہ توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی تو نہیں ہوتا ہے. اور جو جھوٹ ہے، فریب ہے، جو منافقت ہے، جتنی سیئات ہیں، برائیاں ہیں، اللہ ان سے بچا لے اور بھلائی کے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے کرنے کو کہا ہے اللہ ہم توفیق دے کہ سب وہی کام کرے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اللہ بچا لے اس کام کو نہیں کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے. اے اللہ جو پریشان حال جو پریشان دور کر دے. اے اللہ جس کی جو نیک تمنا ہے اس کو پوری کر دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. السلام علیکم.